So memory allocation in C language is actually defined in these ways. This is suppose your RAM, structure of RAM is given over here. So within a program, we have various parts, various components. Similarly, in memory also, conceptually there are various type of memory. Actually, memory is only RAM, but conceptually we are utilizing RAM in different way. So in our memory, we have divided it into two parts. First, program memory and data memory. Program memory where you have written your instructions. Those instructions are stored in this part, program memory. Conceptually there are ऐसा कोई partition नहीं होता, but conceptually ऐसा हम मान सकते हैं. So whatever instructions you have written in your program, suppose you have written 10 instructions, 15 instructions code, whatever the program lines of code we have written, that will be stored in program memory. Right? And within program memory, we have generally two things. One will be main function will be there, and other user defined functions will be there, right? So main and function means main is also a function, but special function program starts its execution from this point, and other user defined functions are also possible, and both of them are written in program memory. So your whole program is made up of these things, right? These all the instructions are there. Then rest of the things are within program wherever you have utilized some data, and that data is defined in different places. So if your data is globally defined, then it will be in global memory area that is differently recognized. If you are defining local variables, then it will be a local memory area called as. And another thing is heap written. Static memory allocation can be done using stack. Local variables are also there, but dynamic memory allocation is done from heap memory. These are again I am saying these are concepts only. ऐसा कोई लेबल लगा करके रैम के अंदर नहीं होता है. हम प्रोग्रामिंग के दौरान यहाँ पर रैम को यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में. तो अगर हम लीफो की हेल्प से रैम को यूटिलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोकल वेरिएबल्स की हैंडलिंग कर रहे हैं. लोकल वेरिएबल्स को स्टोर कर रहे हैं और वो उनका स्कोप, लाइफ टाइम, विजिबिलिटी, ये सब अकॉर्डिंगली होगा. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अगर कर रहे हैं तो वो स्टैक मेमोरी से हमको मेमोरी नहीं मिलेगी. उसके लिए हीप मेमोरी है, तो वहाँ लीफो नहीं लगेगा. That simple concept is heap. Heap memory is a bundle of memory available for programmer dynamically, right? So these are the whole criteria of memory. So in general, sometimes we also say that program memory is code segment and data memory is data segment. There is some extra segment is also there. Extra segment is a combination of these things. Sometimes global within extra segments, strings are there, something other, right? We will see that thing also. But in general, our program can be divided into two parts in memory: program memory and data memory. So conceptually, memory is divided into program memory and data memory. Global variable, local data, dynamic inference. These are all things that I have told you are written over here. Heap memory is used for allocation of memory dynamically. Now, this diagram is visible over here. This is quite large diagram, so I am making it smaller so that it can be visible on screen also. So here you can see this part is heap and stack, right? So stack memory and heap memory are in the same portion. Sometimes it is called as stack segment or extra segment also. So now this is the real picture of RAM that contains all type of memory. That earlier diagram I have shown, this is the general diagram in general, right? But now specific diagram is this. So now here we have how many portions of memory? One, two, three. First is stack segment or also called as extra segment. Then second is data segment. Third is code segment. So your program memory is actually in this code segment, right?
and data segment will have all the kind of data, right? Then stack segment has this heap and stack both. So dynamic allocation will be done from heap. So heap grows down and stack grows up. And there is a thin boundary over here, so that stack will be ended up. ऐसा नहीं कि स्टैक नीचे से, देखिए अगर हीप मेमोरी आप ज़्यादा यूज नहीं करेंगे तो स्टैक ऊपर की ओर ग्रो करेगा, लेकिन अगर हीप मेमोरी भी यूज होने लगी और स्टैक भी यूज हो रहा है, देन इट विल कोलाइड एट सम पॉइंट एंड दैट पॉइंट विल बी द फाइनल पॉइंट फॉर स्टैक. अब स्टैक को खाली करें पहले, तब इसको आगे फर्दर यूज कर सकते हैं. तो स्टैक की तरफ ग्रोथ होता है और हीप लोअर ग्रो होता है. हाई मेमोरी, लो मेमोरी क्या है, ये रैम एक है, रैम के लोकेशंस के हिसाब से बनाया है. सो सपोज रैम की लोकेशन 001 से स्टार्ट होकर के और 1 लाख तक जाती है, तो 001 आपका यहाँ पर लो मेमोरी में होगा और हायर मेमोरी में ऊपर दूसरे एड्रेसेस होंगे, हायर एड्रेसेस. इट डिपेंड्स. So this is also a symbolic representation. So within data segments, we have global variables, static variables, constants, and literals. Literals, constants, and literals. We have strings over here, right? Values or strings. These are here. So data segment will have global variable, C, static variable. There are local variables. Local variables are within stack, so they are not mentioned in data segment. So data segment has some special type of variables, right? Global variables, static variables. As I have told you in storage class, static variables by default value is 0. Global variables are also by default initial value is 0. Constants and literals. Literals means strings. So these are in data segment part. And rest of the instructions are in program code, that is in code segment. So this is called memory mapping, right? Being a CS student, you should understand this. Search this memory mapping in C within Google and see that diagram with more explanation, right? Because here, due to less time available, I cannot go in depth, but you should see at least once. Memory mapping in C programming, right? Or memory mapping in C language. You should write this in Google. Okay, so now we will move ahead. We have two type of allocation schemes. Static memory allocation, it requires the declaration and definition of memory be completely specified in the source program at compile time, right? So whatever variables, arrays, pointers you have defined statically, they are under the static memory allocation part, and size of memory cannot be changed at runtime. Normally, if you have written int I is equal to 10, then you cannot, and even you will not want to change that I, because I is based on primary data type. In arrays, you sometimes you want to increase size of array, but due to static nature or static memory location, it is restricted. We cannot do so. So now that restriction will be overcome in dynamic memory location. So in dynamic memory location, we have different functions like malloc, calloc, realloc, or you can say malloc, calloc, realloc to allocate, and free function is used for free memory, right? And free memory for data during execution. There is one more function, free function, FREE bracket must be there. In this, heap can be accessed through a pointer only, right? So dynamic memory location can be done using pointers only, and that memory block is made available to us from heap memory, right? Not from stack memory. Stack memory is for static allocation, and dynamic memory allocation is done from heap memory. As we have seen here, heap and stack both are in the same place in extra segment, but there is a thin line of boundary between static and dynamic. So dynamic will grow downside, static will grow upside. In some books, its direction is written in opposite. Then also it is correct, but they will move towards each other.
So now what is difference between dynamic memory location and static memory location? This is important question for C programming point of view. So in static, during compilation, we cannot do anything. Before execution of program, memory is allocated. During the execution, we will see during dynamic memory location in detail. No memory location or deallocation actions are performed. Memory bindings are established and destroyed during the execution. Yes, due to various functions possible over here. Variables remain permanently allocated only when program unit is active. Implemented using stacks and heaps, implemented using data segment from heap only. Here also we should remove this heap. This is only with stacks. Pointers needed to access variables, no need of dynamically allocated pointers. Because this is already based on dynamic allocated functions, so there is no need of pointers. Dynamically pointers are not required. Yeah, pointer required only. Static memory execution is faster than dynamic. बिकॉज ये प्रोग्राम से पहले कर दिया ना, अब ये प्रोग्राम के दौरान हो रहा है तो एक एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, इसलिए प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा. More memory space is required, no specified functions are there, less memory is required, and functions are present. So now we will start with dynamic memory location, because for static memory location we don't have to follow any special procedure, no special functions are there, but here in dynamic memory location we need functions. Right? So these functions are malloc, calloc, and realloc for allocation purpose, and for deallocation. If you have used that memory completely and now you don't want it further in your program, then deallocation can be done. So deallocation will be done using free functions. All these functions are in standard library file. Sometimes they are in alloc.h, malloc.h, but in stdlib.h they will run. Right, so first function is malloc function, block of memory allocation. This function allocates a block of memory. The size of block depends on the number of bytes passed in at the parameter. So now we have to define how much memory is required. It depends on the data we want to store dynamically. Right? If you want to store only integer, then integer size number of bytes are required. Suppose your processor is of 4 bytes, so 4 is the required size. If you want to store 2 integers, then 8 bytes are required. How 2 integers can be stored? Within an array only. Right? This function allocates a block of memory, and that block depends on the number of bytes that you have passed as a parameter. तो अपनी रिक्वायरमेंट हमको उसमें पैरामीटर की तरह से पास करनी पड़ेगी, और वो हमको उस ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न कर देगा. इट रिटर्न्स अ वॉइड पॉइंटर, क्योंकि ये फंक्शन खुद नहीं जानता है कि आप जो मेमोरी मांग रहे हो, क्योंकि ये जनरलाइज फंक्शन है, किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकता है. राइट, ये जनरलाइज फंक्शन है. आप मेमोरी जो भी मांगेंगे उसमें किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. वो इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, एरे भी हो सकता है, खुद स्ट्रक्चर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, कुछ भी वैल्यू उसमें स्टोर हो सकती है उस ब्लॉक में जो आपने डायनेमिकली डिमांड किया है. तो हमारा जो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का फंक्शन होना चाहिए वो जनरल होना चाहिए, जिससे कि वो ऐसे मेमोरी दे दे जिसमें आप किसी भी तरह की वैल्यू रख सकें. तो इसीलिए इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है, एक्चुअली देखिए मेमोरी एलोकेट हो रही है, मेमोरी कैसे एक्सेस करते हैं? एड्रेस से. तो हमें कोई एड्रेस मिलेगा, इस एड्रेस पे जाओ आपको मेमोरी मिल जाएगी. तो मैलोक फंक्शन क्या करता है, उस ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस हमको रिटर्न कर देता है. तो आपने मांगा 4 बाइट का ब्लॉक या 8 बाइट का या 50 बाइट का या 100 बाइट का एक ब्लॉक मांगा, उस ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस ये प्रोवाइड कर देगा. बाकी तो पूरा ब्लॉक आपको मिल ही गया, क्योंकि वो ब्लॉक पूरा कंटेंट है, कंटिन्यूटी में है उस एड्रेस से. तो स्टार्टिंग एड्रेस उस ब्लॉक का मिलेगा हमें. अब स्टार्टिंग एड्रेस तो चलो मिल रहा है, वो है वॉइड पॉइंटर. लेकिन वॉइड पॉइंटर को हम क्या नहीं कर सकते, हम यूज नहीं कर सकते तब तक जब तक कि उसको टाइप कास्ट ना कर दें. तो वॉइड पॉइंटर बिना टाइप कास्ट किए यूज नहीं हो सकता.
तो वाइड पॉइंटर को किस में टाइप कास्ट करना पड़ेगा? जिस तरह की वैल्यू हम उस ब्लॉक में स्टोर करना चाहते हैं उस डेटा टाइप से उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अगर आपने वो ब्लॉक इंटीजर स्टोर करने के लिए मांगा है तो इंटीजर पॉइंटर से टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। वाइड पॉइंटर को इंटीजर पॉइंटर से टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम उसमें रेफरेंसिंग और डी रेफरेंसिंग ये सब कर पाएंगे, क्योंकि वाइड पॉइंटर को तो डी रेफरेंस कर नहीं सकते। पर ये जनरली ये वॉइड पॉइंटर ही रिटर्न करता है। तो देखिए फंक्शन का नाम है मैलॉक, उसके अंदर दो एक पैरामीटर है साइज अंडरस्कोर टी साइज। अब ये जो साइज अंडरस्कोर टी है ये एक्चुअली में इंटीजर ही है एक तरह का, राइट? ये एक तरह का इंटीजर है, आप इसको इसके उसमें परेशान मत होइए, ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है मैलॉक फंक्शन का। जैसे आपने देखा था ना एस टी आर सी एम पी का स्टैंडर्ड क्या था, कैरेक्टर पॉइंटर एस टी आर सी एम पी, और उसमें दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया गया। एस टी आर सी पी वाई का क्या था, कैरेक्टर पॉइंटर एस टी आर सी पी वाई और विद इन पैरेंथेसिस कैरेक्टर पॉइंटर कॉमा कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर, तो थे ना। तो वहां पर भी हमें पता था एस टी आर सी पी वाई क्या करता है, एस टी आर सी एम पी एस टी आर सी ए टी, उसका वो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन था। इसी तरह से मैलॉक का ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये है मैलॉक का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, इतना, ठीक। ये है मैलॉक का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो ये पैरामीटर है आपको क्या पास कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ बाइट्स। इसके स्टैंडर्ड में ये लिखा गया है कि साइज अंडरस्कोर टी नाम का टाइप का एक साइज पास किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ऑफ दिस मैलॉक फंक्शन यू हैव टू पास ओनली अ नंबर। तो अगर आपको 4 बाइट का ब्लॉक चाहिए तो यहाँ 4 पास कर देंगे, 60 चाहिए तो इस जगह पर 60 पास कर देंगे जब मैलॉक को कॉल कर रहे होंगे तब, राइट। एंड इफ यू डोंट नो द साइज, और आपको पता है कि हमें 4 इंटीजर स्टोर करने हैं, तो क्या करेंगे, 4 इंटू साइज ऑफ इंट। एक इंटीजर का साइज निकाल लें यहाँ पर, साइज ऑफ से उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। हमें नहीं पता है कई बार कि हमारा प्रोसेसर जो है वो 16 बिट प्रोसेसर है या 32 बिट प्रोसेसर है या 64 बिट प्रोसेसर है, देन वी हैव टू गो विद दिस वन। तो जनरली हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम जिस कंपाइलर पर वर्क कर रहे हैं वो हमारा कितने बिट प्रोसेसर का है और एग्जैक्टली हमें कितनी वैल्यू कितना डेटा चाहिए। या कई बार हम अगर स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए मांग रहे हैं, तो फिर अब स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन तो मैंने आपको बताया है, वो डिपेंड्स ऑन द लार्ज मल्टीपल्स ऑफ लार्जेस्ट डेटा मेंबर। तो वहां पर तो साइज ऑफ ही लगाते हैं स्ट्रक्चर के लिए। वहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं करते बैठ के स्ट्रक्चर को, फिर उतने बाइट देंगे नहीं, हम वो साइज ऑफ लगा देते हैं, कंपाइलर कैलकुलेट कर लेगा उतना साइज का ब्लॉक हमें दे देगा, राइट। तो यहाँ पर साइज ऑफ साइज पता लगाने के लिए साइज ऑफ यूज कर सकते हैं। अगर साइज आपको कंफर्म पता है तो सीधा नंबर पास कर दो कितने बाइट्स का है, ठीक। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड पॉइंटर। ये रिटर्न टाइप है इस फंक्शन का। जैसे हम कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं तो इंट हो जाता है, तो मैलॉक फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड पॉइंटर। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमारा फंक्शन इस तरह से कॉल होगा। हम क्या लिखेंगे, मैलॉक लिखेंगे, नेम ऑफ फंक्शन होगा, कितने बाइट्स का ब्लॉक चाहिए, नंबर ऑफ बाइट्स अंदर पास करेंगे, और उस ब्लॉक में जो हम डेटा स्टोर करने वाले हैं उसका डेटा टाइप क्या है, उससे हम इसको टाइप कास्ट कर देंगे, ठीक है। उससे टाइप कास्ट कर देंगे तो क्या होगा, जो मैलॉक है ये रिटर्न करेगा अपनी जगह पर उस ब्लॉक का पहला एड्रेस। वो पहला एड्रेस इस टाइप से टाइप कास्ट हो जाएगा, जो आपने इसके पहले टाइप कास्टिंग करी है इससे वो टाइप कास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं पर हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या करता है वो अपने रिजल्ट को वहीं पर छोड़ जाता है, ठीक। जैसे सम को हमने कहीं पर कॉल किया %d कॉमा सम 4,5, तो सम 4,5 का अगर आंसर 9 है तो %d की हेल्प से वो 9 प्रिंट हो जाता है, सम ने 9 वहीं पर छोड़ दिया है, करेक्ट। अगर वहीं पर हम, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता जाता हूँ साथ में, एक मिनट, से आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो कि यहाँ पर ये कास्ट डेटा टाइप ऑपरेटर और ये सब क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर डेव सी में या नोट पैड में किसी में करके दिखाता जाता हूँ ये टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है। एग्जैक्टली यही कंफ्यूजन होता है मैलॉक में, इसके अलावा तो कैलक रियलॉक विल बी वेरी इजी।
If you have understood malloc, rest is very easy, very fluent. देखिए जैसे हमने यहाँ पर अगर हमने कोई फंक्शन बनाया मेन, ठीक है, मेन के नीचे हमने, मैं अभी इसको रन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, हमने लिखा printf, ठीक, printf के अंदर हमने लिखा सम इज इक्वल टू, ऐसा लिखते स्पेस और यहाँ लिख देते हैं सपोज %d, %d, तो बिल्कुल हो रहा होगा स्क्रीन। अभी हम यहाँ पर अगर हमारे पास ऊपर कोई सम फंक्शन था, मान लिया यहाँ पर कोई सम फंक्शन था और उसके अंदर हमने यहाँ पर इंट ए कॉमा इंट बी, बहुत जल्दी इसको बना भी सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है फंक्शन बनाना। रिटर्न ए प्लस बी, ये था फंक्शन सम। अब यहाँ पर हमने मेन के अंदर गए और सम इज इक्वल टू % लिखा और कॉमा, यहाँ पर क्या करते हैं सम को कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, और यहाँ पर दो वैल्यूज दे दी, सपोज 4,6 दे दी, ठीक, बस बन गया प्रोग्राम। तो अगर हम यहाँ इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये वैल्यू कैसे दे रहा है, ऊपर से सम को कॉल कर रहा है और वैल्यू प्रिंट कर दे रहा है, क्या 10। सर एम्परसेंड उसके अंदर है बेटा एम्परसेंड क्या करे बेटा, फिर से बताएं। सर सम में रिटर्न टाइप नहीं है तो बेटा रिटर्न टाइप सामने ये रहा, ऊपर इंट वॉइड। अरे तुम लोग तो बिल्कुल ही भूल जाते हो, अगर किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप ना हो तो उसका बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर सर। हाँ इसीलिए, इसीलिए नहीं लिखा तब भी चल रहा है। अगर मैं वाइड लिख दूं तब मैं रिटर्न नहीं करा पाऊंगा, लेकिन मैंने वहाँ कुछ नहीं लिखा, वही तो मेन के साथ भी है, मेन लिखे या इंट मेन लिखे बात तो एक ही है, इसीलिए मैं नहीं लिखता हूँ ये सब फंक्शंस में। मैं एक क्लास और लूंगा आप लोगों की, रिवीजन क्लास आगे, मैं थोड़ा डाउट मुझे लग रहा है आप लोगों को। देखिए सम प्रिंट हो रहा है, सम इज इक्वल टू 10, प्रोग्राम इज करेक्ट, आउटपुट इज करेक्ट। तो अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस सम फंक्शन की वैल्यू को अगर मुझे फ्लोट में प्रिंट करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ, इसके रिजल्ट को ऐसा लिख दूं फ्लोट सम प्रिंट, राइट। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये 10.0000 प्रिंट करेगा, देखिए प्रिंट कर दिया इसने 10.00। तो ये है फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को टाइप कास्ट करना। ये मैं जानबूझ कर यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट फिर भी ऐसे होता है, राइट। तो अब मैं बता रहा था आपको कि सपोज सम फंक्शन को आपने कॉल किया तो सम फंक्शन अपनी जगह पर वो वैल्यू छोड़ दी उसने 10, फ्लोट टाइप कास्टिंग ने उस 10 को 10.00 बना दिया और परसेंटेज की वजह से वो प्रिंट हो गया, ठीक, यही था इसका। अब यही चीज हम अपने वाले उस केस में चलते हैं, करते हैं जा करके, जिसको हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या किया हुआ है, वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था हमारे पास वॉइड पॉइंटर। अभी इसको ऐसे ही समझ लीजिए, यहीं पर वही मैं लिख के दिखा रहा हूँ जो मैलफ वाली चीज थी, यहाँ पर ये वॉइड एस्टेरिस्क, तो वाइड पॉइंटर हो गया, मैलफ हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या है, साइज है, ये है मैलफ का स्टैंडर्ड डेफिनेशन। और जब हम इसको अपने मेन के अंदर कॉल करेंगे बेटा, तब कैसे करेंगे, अगर हमें पता है कि हमें यहाँ पर मैलफ में, कमेंट कर देते हैं, स्क्रीन ना विजिबल हो तुरंत बताएंगे। मैलफ में अगर हमको पता है कि हमको 4 बाइट का ब्लॉक चाहिए तब तो हमने 4 लिख दिया, अगर हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइज ऑफ, ठीक है। और हमें सपोज यहाँ पर 5 इंटीजर स्टोर करने हैं, अब एक इंटीजर का साइज इसने निकाल लिया और हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस साइज को 5 से, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 5 इंटीजर का साइज यानी कि 20 बाइट्स, एक तरह से यहाँ पर मैलफ में 20 लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हमारा प्रोसेसर 4 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो 4 × 5 20 हो जाएगा, तो मैलफ में 20 लिखा है। अब ये ब्लॉक तो हम बना रहे हैं, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो स्टार्टिंग एड्रेस हमारा यहाँ पर टाइप कास्टेड होना चाहिए, इसमें
इंटीजर स्टोर करना है तो इंटीजर पॉइंटर में। तो ये देखिए, जैसे ये फ्लोट लिखा है हमने सम के पहले, फ्लोट सम के रिजल्ट को फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया, उसी तरह से मैलॉक के पहले हमने इंट पॉइंटर लिख दिया। सो मैलॉक जो एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है उस एड्रेस को हमने इंटीजर पॉइंटर में टाइप कास्ट कर दिया। ठीक, अगर हमें फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी है तो फ्लोट पॉइंटर से टाइप कास्ट करेंगे, अगर स्ट्रक्चर स्टोर करना है तो स्ट्रक्चर पॉइंटर से टाइप कास्ट करेंगे। जो जैसी भी वैल्यू आपको उस ब्लॉक में स्टोर करनी है उस तरह के पॉइंटर में उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एड्रेस रिटर्न कर रहा है और एड्रेस पॉइंटर में स्टोर होता है, तो रहेगा तो वो पॉइंटर। और इन जनरल उसका अपना स्ट्रक्चर कह रहा है कि वो वॉइड पॉइंटर है। अब वॉइड पॉइंटर अगर हम यूज करते तो उस एड्रेस को ना तो हम रेफरेंसिंग में यूज कर पाते ना ही डी रेफरेंस कर पाते, क्योंकि वॉइड पॉइंटर तो डी रेफरेंस होते नहीं है। ये वॉइड पॉइंटर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बस यही पर्पस है यहाँ पर। एक बार फिर से बचे हुए नोट्स में फिर से जाते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और फिर वापस प्रोग्राम में आते हैं। अभी आपको करके दिखाता हूँ प्रोग्राम में। तो सबको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पर ये टाइप कास्टिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, और ये बहुत आसान फंक्शन है मैलॉक फंक्शन, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। केवल यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कितने बाइट्स भेजने हैं और उस ब्लॉक में जो डेटा स्टोर होना है वो किस टाइप का है, तो उस टाइप का पॉइंटर डेटा टाइप यहाँ लिख देना है। राइट, बाकी और कुछ नहीं इसमें देखने की जरूरत है, वो अपने आप से प्रोवाइड कराएगा। जैसे देखिए यहाँ पर है ये लोकेट एन इंटीजर, एक इंटीजर को स्टोर करना है तो पहले हमें ये बनाना पड़ेगा पी इंट नाम का एक इंटीजर पॉइंटर इस लाइन से पहले। ठीक है, फिर मैलॉक कॉल किया, यहाँ पर एक इंटीजर को हम डायनेमिकली स्टोर करना चाहते हैं, सो वी हैव टू राइट हियर मैलॉक साइज ऑफ इंट, या फिर हम यहाँ डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं। ये सब ना लिखें, साइज ऑफ हटा दें, 4 लिख दें डायरेक्ट, हमें पता है 4 बाइट लेता है। अगर हमें नहीं पता है प्रोसेसर पे भरोसा नहीं तो फिर हमें लिखना पड़ेगा। फिर मैलॉक लिखेंगे नेम ऑफ द फंक्शन और फिर रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप जो है उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है। देखिए वैसे जब हम कॉल करते हैं कहीं पर फंक्शन तो हमें कभी रिटर्न टाइप लिखना पड़ा कॉलिंग में? कभी नहीं। हमें रिटर्न टाइप यहाँ पर इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमें उस वैल्यू को टाइप कास्ट करना है। अदरवाइज हम क्या कभी ऐसा आपने देखा है कि कॉलिंग के समय कोई रिटर्न टाइप दे? नहीं, ये सिर्फ टाइप कास्टिंग है जिसकी वजह से रिटर्न टाइप दिया हुआ है। ठीक है, अदरवाइज आप फंक्शन के डेफिनेशन में तो हम रिटर्न टाइप देते हैं। यहाँ मैंने इंट दिया हुआ, आप मान लीजिए कि वो इंट है, लीजिए आपको भरोसा हो गया ये इंट है। ठीक, फंक्शन के डिक्लेरेशन में भी रिटर्न टाइप होता है लेकिन फंक्शन की कॉलिंग में रिटर्न टाइप नहीं होता है। यहाँ पर फ्लोट क्यों लगाया? क्योंकि हम इस रिटर्न वैल्यू का डेटा टाइप बदलना चाहते थे और फिर प्रिंट करना चाहते थे। वही सेम चीज हमारी बिल्कुल वहां पर यहाँ पर मैलॉक के केस में लग रही है। ठीक है ना, मैलॉक के केस में यही सेम चीज लग रही है एकदम। अभी भी किसी को कंफ्यूजन होगा तो आगे दूर हो जाएगा धीरे धीरे, जब क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा फंक्शन है ना, इसका पॉइंटर से बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है, तो धीरे धीरे जब आप इसको पढ़ेंगे कई बार पढ़ेंगे देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। इन फर्स्ट गो डेफिनेटली इट इज नॉट सो इजी टू डाइजेस्ट एंड अंडरस्टैंड। तो टू एलोकेट इंटीजर ये हो गया। तो मैलॉक सक्सेसफुल रहा अगर तो क्या करेगा, वो जो मेमोरी उससे मांगी है उस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस इस पॉइंटर को असाइन कर देगा। और अगर मैलॉक सक्सेसफुल नहीं रहा, माने कि हीप मेमोरी आपकी एग्जॉस्ट कर गई, आपने इतनी ज़्यादा मेमोरी मांग लिया कि उसको हीप मेमोरी में ख़त्म हो गई। ये पुराने केसेस में ऐसा होता था, अब नहीं होता है क्योंकि अब रैम हमारी काफ़ी बड़ी हो गई है, सफिशिएंट साइज़ की है, तो उसमें हीप मेमोरी भी उसी के अकॉर्डिंग सफिशिएंट है। जब हमारी रैम पहले मेगाबाइट्स में होती थी 256 मेगाबाइट 128 मेगाबाइट, तब ये दिक्कत होती थी। राइट, क्योंकि ये तो सी लैंग्वेज तो 1970 से शुरू हुई है, तो 2000 2005 तक रैम बहुत कम थी। अब तो रैम सफिशिएंट हो रही है, 16 GB तक रैम आ रही है आराम से लैपटॉप में, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये फेल होने की गुंजाइश अब कम है। तो अगर ये फेल हो जाता है मैलॉक तो फिर ये इस पॉइंटर वेरिएबल में क्या रिटर्न करता है? नल पॉइंटर। राइट, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है उसके पास वो मेमोरी है हीप मेमोरी और उसने एलोकेट कर दिया वो ब्लॉक, तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस उसको दे दिया, तो दैट एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन दिस। अब यहाँ पर हम मैलॉक को अगर 0 साइज की मेमोरी मांगे मैलॉक से तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, 0 साइज की या नेगेटिव साइज की, कि हमें -1 बाइट की मेमोरी दे दीजिए, ये तो कोई मेमोरी नहीं है, तो वो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देगा। इसलिए यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन होता है इस तरह से। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं प्रोग्रामिंग वाला जिसमें हम इस काम को सक्सेसफुली कर ले। जल्दी से एक प्रोग्राम कर लेते हैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन यूज करते हुए।
एरे वाले को ही कर दें, इसी वाले को। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ जस्ट नाउ। एरे एलिमेंट्स का एवरेज निकालना है, और वो भी डायनेमिकली। सो डायनेमिकली करने के लिए अब हम एरे को स्टैटिकली डिफाइन नहीं करेंगे, सब लोग ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम एरे डिफाइन करते हैं, फंक्शंस वगैरह का काम बाद में करेंगे, या मेन फोकस है मैलॉक। तो सबसे पहले हमें एरे डिफाइन करना है। तो अब एरे का नाम हम यहाँ पर क्या नहीं रखेंगे, ये नहीं रखेंगे, ये तो हमारा स्टैटिक तरीका है ना करने का। तो अब हम यहाँ पर एरे का नाम रखेंगे ये इंट पॉइंटर ए, क्योंकि हमें पता है एरे और पॉइंटर्स में आपस में लिंकिंग होती है, और हम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन यूज करने वाले हैं, ठीक है। इंट पॉइंटर ए बनाया, मान लिया एक, और दूसरा इंटीजर एन बना दिया एरे के एलिमेंट्स लेने के लिए, लूप चलाने के लिए आई ले लिया, कुछ ऐसे रख लेते कुछ वेरिएबल्स, ठीक। तो ये हमने वेरिएबल्स रख ली। यहाँ पर एक यूजर से एंटर करा दें, एंटर साइज साइज ऑफ एरे यूजर से एंटर करा देते हैं। कर दें फटाक से और तेजी से, %d, %m%n। सो यूजर जितने n में वैल्यू डालेगा उतने एलिमेंट्स का हम एरे बनाना चाहते हैं, ये बात है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें मैलॉक लगाना है। मान लिया यूजर ने n डाला यहाँ पर, और n की वैल्यू लेट n इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो अब मैलॉक में हमें यहाँ पर जाना है, और n के डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पर एक इंटीजर का साइज कितना है हम वो बता दें साइज ऑफ इंट से, और जितना साइज है उसमें n से मल्टीप्लाई कर दें, चाहे n से पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में, वो तो एक ही बात है ना। तो मैलॉक से हमने ये इतना तो बनाया, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें करना है टाइप कास्टिंग। क्या स्टोर कर रहे हैं उसमें, इंटीजर। तो यहाँ पर लिख दिया इंटीजर एस्टेरिस्क। तो अब जो मैलॉक रिटर्न करेगा ब्लॉक, उसमें हम इंटीजर ही रख पाएंगे, ठीक है, उसमें हम इंटीजर ही रख पाएंगे। और यह इसका स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न कर रहा है, तो वो स्टार्टिंग एड्रेस हमने दे दिया ए को। तो एक वेरिएबल है जिसके पास एक ब्लॉक का स्टार्टिंग एड्रेस है, और ब्लॉक की नंबर ऑफ बाइट्स हमें पता है, तो अब ए के अंदर हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम फॉर लूप लगा करके वैल्यू डाल सकते हैं, प्रिंटफ करके डालें यहाँ पर, एंटर, कितनी वैल्यूज डालनी है, %d वैल्यू, %d की वैल्यू कितनी, n वैल्यूज डालनी है, % की जगह n आ जाएगा, उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज मांग रहा है, ठीक। तो अब फॉर लूप चलाते हैं यहाँ फटाफट, फॉर लूप चलाते हैं, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। क्या करना होता है वैल्यूज इनपुट करने के लिए, स्कैनफ हमें हमेशा करना पड़ता है, स्कैनफ कर दें %d, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या लिखना है, मैंने आपको बताया है, जरा यहाँ पर ध्यान दें एक बार। अगर हमारे पास एरे और पॉइंटर की लिंकिंग हो रखी है बेटा, तो ai इज सेम एज व्हाट, ai इज सेम एज asterisk a plus I, सॉरी, asterisk a plus I, ये मैंने बताया आपको। जैसे i की वैल्यू 0 है तो a 0, एस्टेरिस्क a, i की वैल्यू 1 है तो सेकंड एलिमेंट, ये बताया ना आपको एरे और पॉइंटर्स की लिंकिंग में। ai अगर कोई एरे है, मान लिया कोई एरे है, तो एरे में वैल्यूज हम ai के थ्रू डालेंगे, तो a0 पहला एलिमेंट होगा, a1 दूसरा एलिमेंट होगा, a2 तीसरा एलिमेंट होगा, इस तरह से होगा। और अगर उसी को हम पॉइंटर से हैंडल करें, तो एरे का एड्रेस a उसके पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, और ये वैल्यू एड ऑपरेटर लगा रखा है पहले इसके। तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो पहले एलिमेंट को देख रहा होगा, जब i की वैल्यू 1 होगी तो नेक्स्ट एलिमेंट, टू सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, इस तरह हो जाएगा है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई है कि अगर यहाँ पर मैं m% लगा दूं, m%ai इज सेम एज a प्लस आई, ठीक है ना। m%ai का मतलब क्या हुआ, ith एलिमेंट का एड्रेस, और क्योंकि एरे का नेम खुद एड्रेस होता है, तो उसमें हम a प्लस आई लिखेंगे। तो ये कमेंट में किसी को डाउट तो नहीं है, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ,
यहाँ पर लिखूंगा मैं a प्लस आई स्कैनएफ में, क्योंकि हमने डायनेमिकली उसको क्रिएट किया है ना, इस वजह से। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमने क्या एरे क्रिएट किया है तो हम उसको देख सकते हैं। यहाँ पर एरे हमें देखना है सपोज, तो एरे इज, ऐसे करना, एरे देख लेते हैं। एरे देखने के लिए फिर से मैं ये यूज कर लेता हूँ फॉर लूप, और इस बार मैं दूसरे तरह से लिख दूंगा उसको, प्रिंटफ कर दूंगा वहाँ पर। तो स्कैनएफ की जगह पर प्रिंटफ कर दें, और यहाँ पर परसेंट डी है ही है, और इसमें क्या कर दें भाई, एस्टेरिस्क लगा दें, एस्टेरिस्क ए प्लस आई। कि एरे और पॉइंटर्स की लिंकिंग से हमने ये जान लिया था कि ए हमारा एड्रेस है और एस्टेरिस्क ये क्या है, वैल्यू एट ए। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे हमारे पास एरे के अंदर। ठीक, चले देखें पहले कि ये काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो फिर और हैश इंक्लूड और वो सब भी करना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैलॉक यूज किया है। अगर ये मैलॉक में फंसेगा तो हैश इंक्लूड लगा करके stdlib लगा देंगे ऊपर। नहीं फंस रहा है तो वेल एंड नाइस, कई बार ये चल भी जाता है। ठीक है, ये आ रही है। साइज ऑफ एरे पूछ रहा है, तो मान लिया मैंने साइज ऑफ एरे एन की वैल्यू 5 दिया, तो 5 एलिमेंट मांग रहा है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट दे दिए मैंने, एंटर कर दिए, 5 एलिमेंट आ गए। देखिए इसमें कहीं भी स्टैटिकली एरे नहीं बनाया है, डायनेमिकली बनाया है, और एरे हो गया है, 5 वैल्यूज आ गई हैं। अब उसको आप 5 वैल्यूज को एरे मानिए या एरे ना मानिए, डिपेंड्स, बट इट इज एक्सेप्टिंग 5 वैल्यूज ऑफ सिमिलर टाइप एंड स्टोर्ड अंडर वेरिएबल ए ओनली इन अ प्रॉपर सीक्वेंस कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो यही एरे की डेफिनेशन है और वही एरे बन चुका है। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, हमने प्रिंट तो वैसे कर लिया, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसा कर दूँ तो क्या ये अभी भी वही रिजल्ट देगा एरे की तरह से? मेरे पास कोई एरे का रिप्रेजेंटेशन ऊपर नहीं था, बट प्रिंट करते समय मैं चाहता हूँ कि इसको ये करे। ठीक है, तो डबल ब्रैकेट हो गया, एक ब्रैकेट बंद कर दें। ठीक, चलिए रन करके देखते हैं इसको। करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट है। सो एरे और पॉइंटर्स दोनों इक्विवेलेंट बिहेव कर रहे हैं, रन कर रहा है। मान लिया इस बार 6 एलिमेंट्स लिए, 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 के 6 आ गए। तो जितना भी एन की वैल्यू होगी आ जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने अपने स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन को डायनेमिक में कन्वर्ट कर दिया है। यही मैलॉक है। किसी को डाउट हो तो बताएं यहाँ तक, सर आपने ऐसा क्यों किया या इसको ऐसा कर सकते थे, ऐसा कुछ भी आपके मन में हो।